and if they just roll the condom over this thing, Okay. And what they do is they tie it with the silk. So this is tied with the silk. So once you tie it with the silk, and then it is connected to the IV fluid, and then it is filled. So what happens, and then the uterine tamponade is created, and the bleeding stops. But there are certain problems with this conventional type of condom balloon tamponade. What happens when we tie the thread, and then sometimes the knot is loose. So when we are filling the saline, it just leaks out. And if we tied it quite tightly, then the fluid does not go in. So that is a problem. So, thirdly, what happens whenever we use any this suture material, it sometimes cuts through the this condom material, and patient is bleeding, and on the face of bleeding, my tamponade is not consistent. So that gives a lot of problems. So, and thirdly, the biggest problem is that the conventional condom balloon tamponade does not have a drainage port, which the uterine specific devices like Bakri balloon or EBB, they have it. But the problem is that the Bakri balloon costs $250, that is around 13,000 to 14,000 rupees. So what we did was, at our college in Chhattisgarh, we made an innovative condom balloon tamponade, which is known as Chhattisgarh balloon, after the name of my state. So what we do is, I'll tell you how do we make it. So what we take it, I am not wearing gloves so that you can see the rings properly, and because this is just a demonstration. So generally we take a 20 or 22 or 24 number French 24 French Foley's catheter. Then what I'll do is, I just cut 2 rings. You see this? I cut 2 rings. These are, just cut the rings. This is made a rubber band. Fine. Then what will happen? So just this is already sterilized, so I can cut 2 or 3 rings. Then what I do is, just I have to fill the bulb. So you just fill the bulb with 5 ml of air, and then I have to just cut the bulb. Fine. Now you just cut it all around, because we have to, the fundamental thing is to replace, and we can either excise it or you can simply evert the thing. So you can evert it. Now what we do is, देखा उनने जो जहाँ से अपन यूरोबैग कनेक्ट करते हैं ना कैथेटर में, उधर से उनने 2 रिंग्स बनाने के लिए उसको काट दिया. उसके बाद उनने जो जहाँ पे इन्फ्लेट करते हैं, इन्फ्लेट किया, हमने एयर भरा, उसको उनने काटा, उसको काट दिया. ठीक है, इसलिए काटा क्योंकि वहां पे अब उनको एक जगह चाहिए जिससे इनफ्लो आउटफ्लो हो सके. मतलब कि आप अंदर कॉन्डम कैथेटर में पानी भर सको, एक चीज. दूसरी चीज, ज्यादा से ज्यादा भरोगे, जिसके कारण जो वो है स्पेस जो है वो यूट्रस का ऑक्यूपाई कर पाएगी. ठीक है, आगे देखो. just put the condom over this catheter. So this is done, and then you take the rings. So you just take the ring and you apply the upper ring between this bulb and the hole of this catheter, hole of the catheter. So you just wound it around only twice, means so you do it twice. This is in between the bulb, and the hole. Can you see this area? Now the second ring, I will be applying the second ring just 1 to 2 centimeter from the this tip, rim of the condom.
So this done. Yeah. Fine. Now what I'll do is I'll simply cut this thing, cut the tip of the condom and tip of the catheter together, and this has, can you see this hole? So now the hole is created. Now you see what I have done is I have replaced the bulb of the Foley's catheter with a bigger bulb which is made of condom. Now I have tied both the ends, so this is secure, and I know that length from the tip to the rim, so I know how far I have to introduce the catheter. Now you see, I dip it in the betadine. I wear gloves, of course, and wear it in, keep it in betadine for 3 minutes, and then once you have to introduce it, you just, like, this is a patient, this is the uterus, and what I have to do it, should I do it here? Here you will be able to see. So suppose whenever I introduce it, just keep it between two fingers and just introduce it, it goes inside, and we have to keep the rim, just keep the rim of the condom at the level of the os. This is the landmark. Fine. Now I'll demonstrate how do I fill it. Now while I cut the normal saline bottle like this, दूसरा भर के देना, and just through the bulb inflation port, take the bulb inflation port, through the bulb inflation port, I just fill it with saline. So while I am doing it with one syringe, my assistant fills the second syringe. So I can do it real fast. And maximum amount of saline which is to be filled, देते जो. So generally what we need is around 200 to 250 or 300 ml of normal saline, because this bottle is of 500 ml. So once this bottle is finished, and now you see this is not leaking, this is not leaking, fine. Yeah. So and this is a good drainage port. Yeah. And then I just have to connect it to the this thing, connect it to a Eurosec, and I can measure the ongoing blood loss in real time. So it will be a real time assessment of blood loss, and if there is ongoing blood loss, I can switch over to the next step in the management of PPH. So I can really make that stepwise management of PPH a reality, because now we have a device which works as good as commercially available uterine specific device, and I can make it in 2 minutes and in 100 rupees only. Whenever we make conventional condom balloon tamponade, it also costs around 300 to 400, because we use a silk or Vicryl. That is 400, and this is made only in 100 rupees. So if we save 300 rupees in every device, you just think how much money our country can save in the long run. And that is all I want to say. And this article, this method, this technology is published in International Journal of Obstetrics and Gynae by Fago House, Oxford publication, in our own Jogi. And I have gone to 16 places in 2016 across India, and people are using this and they are finding it very good. And समझ आया हमने कैसे बनाया? जी मैडम. अब देखो इसको डालना कैसे, एक और वीडियो से समझाती हूँ. उनने कुछ और डाला है, लेकिन आपको ये बनाना है, ठीक है? और आपको फिर ऐसे इंसर्ट करना है. हमने ग्लव्स पे दिखाया है, आपको ग्लव्स पे नहीं देखना है. एक सेकंड रुको.
ये वाला नहीं, ये वाला देखो। हेलो मेडिक्स, तो आज हम यूट्राइन बैलून टेम्पोनेट के बारे में समझेंगे। यूट्राइन बैलून टेम्पोनेट एक इमरजेंसी प्रोसीजर है जो कि पीपीएच की कंडीशन में दिया जाता है। हालांकि डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग पीपीएच मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले हमें यूट्राइन ड्रग, यूट्राइन मसाज या फिर फ्लूइड रिससिटेशन का सहारा लेना चाहिए। उसके बाद ही अगर ये सब ट्रीटमेंट अनसक्सेसफुल रहते हैं तो हम यूट्राइन बैलून टेम्पोनेट या फिर यूट्राइन आर्टरी एम्बोलिज्म या यूट्राइन कंप्रेशन स्टिच जैसे प्रोसीजर की हेल्प लेनी चाहिए। यूट्राइन बैलून टेम्पोनेट के कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी है, जैसे कि आपके यूट्रस में इन्फेक्शन है, या फिर आपको ब्लड का कोई डिसऑर्डर है, या फिर आपके यूट्रस में एनाटॉमिकल कोई एनोमली प्रेजेंट है। मार्केट में ऑलरेडी प्रिपेयर्ड यूबीटी प्रेजेंट है, जिन्हें बकरी बैलून टेम्पोनेट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब देखते हैं कि हम लो रिसोर्स में भी, लो सेटिंग में भी यूट्राइन बैलून टेम्पोनेट कैसे बनाएंगे। यूबीटी बनाने के लिए हमें सारे स्टेराइल आर्टिकल्स चाहिए, जैसे कॉन्डोम, स्टेराइल ग्लव्स, फॉलिस कैथेटर, थ्रेड, सिरिंज, स्टेराइल गॉज पीस, आर्टरी फोर्सेप और नॉर्मल सलाइन। इस प्रोसीजर से पहले हमें महिला को ट्रिपल एंटीबायोटिक देनी है, जिसमें मेट्रोजिल, जेंटामाइसिन और अमिकासिन इंक्लूडेड है, ताकि महिला को कोई इन्फेक्शन ना हो। चलिए अब देखते हैं कि कैसे बैलून टेम्पोनेट का प्रोसीजर हमें करना है। सबसे पहले इसके लिए आपको अपने हाथ अच्छे से वॉश करने हैं सोप के साथ, ताकि पेशेंट को आपसे इन्फेक्शन न लगे और आपको पेशेंट से कोई इन्फेक्शन न लगे। फिर स्टेराइल ग्लव्स पहनने हैं आपको। उसके बाद फॉलिस कैथेटर लेना है, और फॉलिस कैथेटर में आपको ये जो दूसरी साइड वाला है, इस वाले लोब में स्लाइन पुश करना है, जिससे कि वो बैलून फूल जाएगा, इन्फ्लेट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आप ग्लव्स ले लीजिए या फिर कॉन्डोम भी ले सकते हैं, क्योंकि वो भी स्टेराइल होता है। वो उसके बनाने बाद का कैथेटर के पहले बताया है, वैसे बनेगा। इनके तरीके को फॉलो मत करना, बस कैसे इंसर्ट करना है वो देखेंगे, ठीक है। अपन ने जैसे वो पिछले वीडियो में सीखा कि कैसे उसको बनाना है, उसको वैसे बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इनने भी ग्लव्स डाला है, उनको ग्लव्स नहीं डालना है, उनको कॉन्डोम यूज करना है, ठीक है। और मान लो कभी किसी परिस्थिति में नहीं मिलता है, ना कॉन्डोम मिलता है ना कुछ, उस केस में फिर आप बल्ब को ग्लव्स के अंदर डालना है और थ्रेड की मदद से इसको यहाँ पे अच्छे से टाई कर देना है। फॉलिस कैथेटर के इस बैलून की वजह से अब ये ग्लव के अंदर से या कॉन्डोम के अंदर से फॉलिस कैथेटर हमारा स्लिप आउट नहीं होगा, अपनी जगह पे अच्छे से टिका रहेगा। और हमें 2 जगह से टाई करना है, ताकि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी रहे। यहाँ पे अगर हमारे पास फॉलिस कैथेटर अवेलेबल नहीं है तो आईवी लाइन की मदद भी ली जा सकती है। आईवी लाइन भी आप इसमें डाल के उसे टाई कर सकते हैं और सीधा आईवी बॉटल से उसमें फ्लूइड दे सकते हैं। अब ये हमारा इंसर्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। यूट्रस में इंसर्ट करने के लिए हमें 2 फिंगर से उसको सपोर्ट करते हुए यूट्रस के अंदर तक पूरा डालना है, और फिर जो दूसरा लूमेन है हमारे फॉलिस का, उससे हमें नॉर्मल स्लाइन पुश करना है। याद रखिए यहाँ पे एयर पुश नहीं करनी है, नॉर्मल स्लाइन ही हमें पुश करना है। और उसके अंदर कम से कम 300 से 500 ml तक फ्लूइड हमें डालना है, ताकि अच्छे से यूट्रस के ऊपर प्रेशर लग सके, क्योंकि जब प्रेशर लगेगा उसी से ही ब्लीडिंग रुकेगी। जब आपको लगे कि अच्छे से प्रेशर बन गया है यूट्रस के अंदर, तब फॉलिस कैथेटर को आर्टरी की मदद से क्लैंप करना है, ताकि वाटर का बैकफ्लो ना हो। टेम्पोनेट को अच्छे से फिक्स करने के बाद हमें यूट्रस की फंडल हाइट चेक करनी है और उसके ऊपर मार्किंग लगानी है, क्योंकि अगर फिक्स करने के बाद फंडल हाइट बढ़ती है तो इसका मतलब है कि अंदर ब्लीडिंग हो रही है और यूट्राइन टेम्पोनेट अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में आपको महिला को तुरंत रेफर करना होगा। यूट्राइन टेम्पोनेट को 6 घंटे से लेकर 24 घंटे तक रखा जा सकता है। यूट्राइन टेम्पोनेट को एकदम से कभी भी नहीं निकालना है। हमेशा पहले 20 से 40 ml फ्लूइड हम निकालेंगे और उसे निकालने के बाद हम 2 घंटे मरीज को अच्छे से देखेंगे, उसके वाइटल साइंस चेक करेंगे, देखेंगे कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो उस कंडीशन में हम फिर 2 घंटे के बाद 20 से 40 ml फ्लूइड विड्रॉ करेंगे। लेकिन अगर किसी कंडीशन में महिला को ब्लीडिंग होती आपको दिख रही है या उसके वाइटल साइंस स्टेबल नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में हम उसको रेफर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोस प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। चलो आया समझ। हेलो एवरीवन, आज हम आयोटिक कंप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। आयोटिक कंप्रेशन पीपीएच के टाइम पे दिए जाने वाला एक इमरजेंसी प्रोसीजर है, जिससे हम बहुत सा कीमती समय बचा सकते हैं और पेशेंट को ब्लीड आउट होने से बचा सकते हैं। तो आयोटिक कंप्रेशन देने के लिए जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है कि हमें बिल्कुल पैनिक नहीं करना है।
आयोटिक कंप्रेशन देने के लिए हमें पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाना है। उसके बाद हमें पेशेंट को रिलैक्स होने के लिए बोलना है। और जैसे कि आप जानते हैं कि आयोटा जो खून लेके जाता है नीचे की तरफ, जो नस खून लेके जाती है वो जस्ट नाभि के थोड़ा सा साइड से होके गुजरती है। तो दिल से आती है सीधा और फिर नीचे आके नाभि से थोड़ा सा नीचे की तरफ जाके 2 हिस्सों में बट जाती है। और यही खून की नस हमारे यूट्रस को और सारी जगह खून प्रोवाइड करती है। आयोटिक कंप्रेशन देने से पहले हमें ब्लैडर खाली करना है मरीज का, और फिर उसके बाद कंप्रेशन देने के लिए, प्रेशर अप्लाई करने के लिए हमें या तो थोड़ी सी ऊंची जगह पे चढ़ जाना है या फिर पेशेंट के लेफ्ट साइड में ही आप बेड पे अच्छे से चढ़ सकते हैं, ताकि प्रेशर देते हुए जब आप प्रेशर दोगे उस एरिया पे तो अच्छे से और इफेक्टिव प्रेशर दे पाए। तो इसके लिए आप सीधे चढ़ जाएंगे और उसके बाद जो आपको मुट्ठी बनानी है उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका अंगूठा बाहर की साइड रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो अंदर की साइड रहेगा तो उंगलियों के ऊपर नीचे होने की वजह से अच्छे से प्रेशर नहीं जा पाएगा और पेशेंट को भी दर्द महसूस हो सकता है। तो इसीलिए अंगूठे को अंदर रखेंगे ताकि जो मुट्ठी की वो है वो एकदम सीधी रहे। फिर उससे आप नाभि के जस्ट बिल्कुल साइड में प्रेशर अप्लाई करेंगे। प्रेशर अप्लाई करने के लिए हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारा हाथ एकदम सीधा रहे। ठीक है, हाथ सीधा रहेगा तो उससे क्या होगा, हाथ सीधा करना है और लॉक कर लेना है। उससे आप अपनी पूरी बॉडी की मदद से प्रेशर डालेंगे। इससे प्रेशर बहुत ही, कंप्रेशन जो आप देंगे वो बहुत अच्छे से होगा और अच्छे से वो नस आपकी रीढ़ की हड्डी के बीच में और आपकी मुट्ठी के बीच में दब जाएगी। लेकिन एकदम से प्रेशर नहीं अप्लाई कर देना, मतलब पेशेंट को भी डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए। तो जब आप प्रेशर अप्लाई करने जाएं तो धीरे धीरे प्रेशर अप्लाई करेंगे। प्रेशर अप्लाई करते हुए दूसरे हाथ से आप पेशेंट की फीमोरल आर्टरी चेक करेंगे। अगर फीमोरल आर्टरी आपको महसूस हो रही है तो इसका मतलब है कि आप अच्छे से प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी वहां पे धड़कन सुनाई दे रही है। जब वो धड़कन सुननी बंद हो जाएगी तभी हम मानेंगे कि जो आप कंप्रेशन दे रहे हैं वो बहुत अच्छे से अपना काम कर रहा है। तो उसके लिए जब भी आप प्रेशर डालें तो दूसरे हाथ से हमेशा चेक करें कि फीमोरल आर्टरी सुनाई दे रही है या नहीं, या बंद हो गई। अगर सुनाई देना बंद हो गई है इसका मतलब बहुत अच्छे से आप अपना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और बहुत अच्छे से आपकी मुट्ठी और आपकी रीढ़ की हड्डी के बीच में आयोटा जो है वो दब गया है, जिससे कि खून का बहाव बंद हो गया है और नीचे खून नहीं जा रहा है। अब बात आती है कि हम कितनी देर तक ये दे सकते हैं। तो हम 20 से 30 मिनट तक ये कंप्रेशन मरीज को दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक, आया समझ? यस मैम। ठीक है जी मैम। तो कैसे हमें बलून टैम्पोनाडिंग करनी ये हमने सीखा अभी। उसके अलावा हमने एक और चीज सीखी कि एओर्टिक कंप्रेशन कैसे करना है, क्योंकि अगर एओर्टा को कंप्रेस करोगे तो यूट्रस का जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाएगा और ये हमें हेल्प करेगा पीपीएच के माध्यम। देखो ये सारी चीजें हैं जो आप आपके सेटअप में कम चीजों में भी कर सकते हो। ये एओर्टिक कंप्रेशन में तो आपको कोई सामान की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ आपका हाथ चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज छत्तीसगढ़ बलून बनाने में, कॉन्डम बनाने में भी आपको सिर्फ एक पोलिस और एक कॉन्डम की आवश्यकता और नॉर्मल सलाइन की जरूरत है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है इमरजेंसी में। किसी भी पेशेंट को ब्लीडिंग अगर ज्यादा है, बेटा वीडियो रुक रुक के आपका ही नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है इंद्रपाल जी हर बार। ठीक है, बाकी तो किसी बच्चे ने कोई कंप्लेन नहीं की है। आपका नेटवर्क, आप जब भी क्लास अटेंड करो तो ध्यान रखो कि ऐसी जगह पे रहो जहाँ नेटवर्क अच्छा आ रहा है। ठीक है, ठीक, चलो। उसके अलावा जब तक आपके पास पेशेंट के पास ब्लड की अवेलेबिलिटी होती है आपको उसको आईवी फ्लूइड्स देने हैं। ठीक है, आपके पास आरएल है आरएल दे दो, नॉर्मल सलाइन है नॉर्मल सलाइन दे दो। ज्यादा ब्लीडिंग है तो एक ये रहता है, कोलॉइड्स रहते हैं। कोलॉइड्स में हमारे पास हाइड्रोक्सीथाइल स्टार्च आता है ना, जिसको हम हीट स्टार्च बोलते हैं। ये स्टार्च, ये सारी चीजें अगर आपके पास हैं तो दे सकते हो, नहीं तो एटलीस्ट आप रिंगर लैक्टेट को चालू कर ही दो। उसके अलावा जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी अपन को ब्लड या ब्लड के कंपोनेंट्स देने हैं, वो 1:1:1 के रेशो में जाएंगे। मतलब एक पीआरबीसी गया तो साथ में आपको एक एफएफपी भी देना है और एक प्लेटलेट भी देना है।
तो इसी तरह अगर 4 PRBC दोगे तो 4 FFP और 4 प्लेटलेट आपको साथ में चलाने होंगे। जब बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, मान लो 2 लीटर के आसपास ब्लड लॉस हो गया, तब आपको कम से कम 4 PRBC, 4 FFP और 4 प्लेटलेट एक के बाद एक चढ़ाने पड़ेंगे। कब तक चढ़ाओगे? आपका टारगेट है कि हीमोग्लोबिन कम से कम 8 ग्राम हो जाए। पेशेंट का कोएगुलेशन प्रोफाइल, जब पीटी एपीटीटी कराओगे तो पीटी कम से कम 1.5 और एपीटीटी भी 1.5 टाइम्स ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का 1.5 गुना जितना कम से कम पीटी एपीटीटी वैल्यू आ जाना चाहिए। फाइब्रिनोजन 100 के आसपास होना चाहिए और प्लेटलेट कम से कम 50,000 होना चाहिए। ठीक है। मॉनिटरिंग में आप क्या करोगे? पल्स मॉनिटर करना है, बीपी मॉनिटर करना है, रेस्पिरेटरी रेट देखना है, पेशेंट बेहोश तो नहीं है, कॉन्शियस है कि नहीं है, ये सारी चीजें देखनी है। और यूरिन आउटपुट मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाने के कारण क्या हो जाता है कि पेशेंट की किडनीज को ब्लड नहीं मिलता और किडनी फेलियर हो जाता है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है और हर चीज आपको डॉक्यूमेंट करनी है। आपने कितने फ्लूइड्स दिए, कितने ब्लड दिए, कितने ब्लड प्रोडक्ट्स दिए, सब कुछ। एओर्टिक कंप्रेशन तो मैंने आपको उसका वीडियो दिखाई दिया है। ठीक है, ये देखो एओर्टिक कंप्रेशन। एकदम नाभि के ऊपर नहीं रखेंगे, नाभि से थोड़ा सा लेफ्ट में रखेंगे और प्रेस कैसे करना है वो अपन ने देख ही लिया। ठीक है। उसके अलावा इन सब से कंट्रोल नहीं होता तो कुछ सूचर्स होते हैं। ये देखो कैसे लगाते, क्या करते हैं, आपकी लर्निंग स्कोप से बहुत ही दूर है, लेकिन इस प्रकार के कुछ सूचर्स होते हैं जिससे यूट्रस को कंप्रेस कर देते हैं आप। ठीक है, यूट्रस को कंप्रेस कर देंगे तो इससे जो है वो ब्लीडिंग रुकने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कुछ नाम देख लो, जैसे बीलिन सूचर होता है, ठीक है, ये हेमैन सूचर होता है और चो स्क्वायर सूचर होता है। ये नाम याद रखो, बीलिंच, हेमैन्स और चो स्क्वायर सूचर। ये कौन से सूचर होते हैं? ये यूट्राइन कंप्रेशन सूचर होते हैं। यूट्रस को ये कंप्रेस करते हैं। ठीक है। और कल मेरे से शायद शाइन पूछ रही थी कि ब्लड वेसल्स को क्लॉट कर देते हैं ऐसा करके कुछ, तो इन सब से कुछ नहीं होता। तो फिर अपन जाते हैं यूट्राइन आर्टरी। जो यूट्राइन आर्टरी होती है, जो यूट्रस को सप्लाई करती है, उसको हम लाइगेट कर देते हैं, उसको बांध देते हैं। ठीक है। यूट्राइन आर्टरी को लाइगेट करने के बाद भी अगर ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होती, तब हम इंटरनल इलियक आर्टरी को लाइगेट करते हैं। और इन सब से भी अगर कंट्रोल नहीं होता है तो फिर हमें हिस्टेक्टोमी करनी पड़ती है। ठीक है, ये है पीपीएच का पूरा मैनेजमेंट, पेरीपार्टम हिस्टेक्टोमी। सब कुछ कर दिया तब भी नहीं हुआ तो फिर तो बेटा यूट्रस निकालना ही पड़ेगा, फिर कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर पेशेंट की जान और यूट्रस में से आपके पास ऑप्शन है तो आपको जान ही बचानी है। यूट्रस तो चला गया कोई बात नहीं, कम से कम जान तो बचेगी मरीज की। ठीक है, लेकिन वो तब जब आप ये सारी चीजें कर चुके हो, उसके बाद भी ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही है। ठीक है, चलो इतना समझ आ गया। अभी तक के कुछ डाउट है तो पूछ लो। चलो, डाउट है कोई? यस मैम। हाँ बोलो डाउट। डिसेंडिंग एरोटा को प्रेस करेंगे तो एक प्रेस करके ही रखना है 20 मिनट तक? हाँ, 20 मिनट तक प्रेस करके रखना है। बीच में छोड़ना तो नहीं है? नहीं, बीच में छोड़ोगे तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी ब्लीडिंग रुक गई है, कंट्रोल हो गई है, तो आप उठा सकते हैं, लेकिन बेटर है कि थोड़ा उसको कंप्रेस करके रखो जब तक कि आपके दूसरे चीजें मेजर्स चालू हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपके साथ वाला जो है वो कॉन्डम कैथेटर बना रहा है, तब तक आप उसको कंप्रेस करके रखो। जैसे ही उसने कैथेटर बनाया, आप छोड़ो, तब तक वो कैथेटर डालेगा, इन्फ्लेट करेगा। तब तक मतलब जब तक आप दूसरी चीज के लिए रेडी हो रहे हो, तब तक एटलीस्ट ये वाला काम तो कर ही सकते हो। ये वाली बात है, समझ रहे हो मेरी बात?
ठीक है, टेम्परेरी ट्रीटमेंट है। हाँ ये है तो बेटा टेम्परेरी, आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हो सकता है सिर्फ इससे भी रुक जाए आपका पीपीएच, हो सकता है आपको इसके बाद कुछ और की जरूरत ना पड़े। ठीक है मैम, इससे पेशेंट को बहुत पेन फील करेंगी ना मैम, पेशेंट तो बहुत पेन बेटा, कुछ नहीं है, पेशेंट की हालत इतनी इतनी ब्लीडिंग हो रही होगी, वैसे ही पेशेंट हमारी बेहोश पड़ी होगी, उसकी जान बचाने के लिए तो सब कर रहे हैं। पेन वेन बात की बात हो जाती है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है लाइफ बचाना। क्योंकि अल्टीमेटली पेन वो उस टाइम सह जाएगी, कर जाएगी, जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन पेशेंट कम से कम जिंदा तो रहेगी, जिंदा तो कर जाएगी। और आप सोचो कि एक मदर की डेथ हो जाना डिलीवरी के दौरान कितना दर्दनाक है, क्योंकि सब तो हॉस्पिटल जाते हैं ना कि यार अच्छा मस्त डिलीवरी करा के माँ और बच्चे को घर लेके आएंगे, सब अच्छा रहेगा, है ना। कौन सोचता है कि माँ कभी वापस ही नहीं आ पाएगी। तो वो परिस्थिति आने से हमें बचना है, हमें जितना जान लगा सकते हैं उस केस में अपनी पूरी जान लगानी है, पूरी मेहनत करनी है कि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हम घर भेजें। ठीक है यस मैम। नाभि से कितने 1 इंच या 1.5 इंच कितना लेफ्ट साइड है ना मैम, अभी जो बोले हाँ, लेफ्ट साइड लेफ्ट थोड़ा सा लेफ्ट जाना है, बस इंच ऐसा वो नहीं है, थोड़ा सा लेफ्ट। और आप देखो ना साथ में एक साथ वाले को रखो कि फीमोरल फील हो रही है नहीं हो रही है, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, फीमोरल पल्स अगर फील हो रही है मतलब आपका कंप्रेशन ठीक नहीं है, उसको आपको और अच्छे से कंप्रेस करना पड़ेगा। ठीक है ओके मैम। मैम कैथेटर को चेंज कितने दिनों में करना पड़ता है? नॉर्मल फोलिस कैथेटर को या जो अभी अपन ने टेम्पोनाड बनाया वो? नॉर्मल कैथेटर। नॉर्मल कैथेटर तो बेटा अपन ज्यादा लंबा वैसे भी नहीं रखते ना, सिजेरियन के अगले दिन हम लोग तो कैथेटर भी निकाल देते हैं। आज सुबह सिजेरियन हुआ, कल सुबह हम कैथेटर निकाल देते हैं। मैम फिर भी कोई 10 दिन 12 दिन ऐसा रखते हैं ना, वो बारे में बोल रहे वो देखो अगर किसी को जरूरत है तो फिर हफ्ते भर में चेंज कर देना चाहिए। ज्यादा दिन रखते हैं एक ही कैथेटर तो इन्फेक्शन के कैथेटर से होने वाले चांसेस हो जाते हैं, तो हफ्ते भर में चेंज कर देना चाहिए। मैडम बैलून को कितना टाइम रख सकते? इसको जो बैलून कैथेटर, बलून कैथेटर तो मैक्सिमम 24 घंटे, उसके बाद तो अपन को डिफ्लेट करना चालू करना ही है। अभी अपन ने वीडियो में भी देखा 24 घंटे तक रख सकते हैं, उसके बाद उसको डिफ्लेट करना चालू करो। ओके मैम, थैंक ठीक है चलो, और कुछ? चलो बुक में अगला टॉपिक क्या है, कोई मुझे बताएगा? पोस्टमार्टम सेप्टिक शॉक। पोस्टमार्टम सेप्टिक शॉक। हाँ और मैम वजाइना डिस्चार्ज का टॉपिक है। अच्छा, तो अपने पास अब बचा है पोस्टपार्टम शॉक पढ़ना है अपने को, और उसके बाद फिर गायनी के टॉपिक आ जाएंगे ना, है ना। दूसरा फिर अपना क्या, वाइट डिस्चार्ज, वजाइनल डिस्चार्ज। ठीक है, तो एक काम करेंगे, मंडे को पढ़ेंगे पोस्टपार्टम शॉक, ठीक है, और उसके बाद आएंगे वेजाइनल डिस्चार्ज। जो सारे इन्फेक्शंस हैं अब अपन सारे इन्फेक्शंस पढ़ेंगे लाइन से। ठीक है, जो बहुत सारे पेशेंट्स वाइट डिस्चार्ज और ये सब करके आते हैं ना, तो फिर अपन ट्यूसडे से ये पढ़ना चालू करेंगे। अब बोलो जितने डाउट्स हैं फटाफट, आज डाउट बाकी के 10 मिनट हैं अपने पास, क्लियर कर लेते हैं। पूरा पीपीएच इतना वास्ट टॉपिक पढ़ा अपन ने। ठीक है, एओर्टिक अन्यूरिज्म क्या होता है बेटा? अन्यूरिज्म का मतलब बताओ पहले, आपने क्वेश्चन पूछा है तो अन्यूरिज्म बताओ। चलो, व्हाट इज अन्यूरिज्म? किसने पूछा है डाउट? ये राधेश्याम जी, अन्यूरिज्म क्या होता है? आज आप पढ़ के मुझे बताओगे अन्यूरिज्म क्या। आपने डाउट पूछा है ना, अब आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज अन्यूरिज्म।
चलो, कोई डाउट है या वाइंड अप करूं क्लास? नहीं है डाउट? यस मैम। एक मिनट रुको, ये चैट बॉक्स में किसी ने कुछ डाला है। हाँ, नहीं बेटा, इससे कोई उल्टा ना तुम्हारा डायलेट होगा ना रप्चर होगा। आप तो कंप्रेस कर रहे हो ब्लड फ्लो को कम करने के लिए, यूट्रस के लिए। यूट्रस कंप्रेस से पाँव शून्य तो नहीं बेटा। आपको और अगर हो भी जाएंगे थोड़ी देर, अगर सर्कुलेशन इधर उधर जाएगा तो टेंशन मत लो, और भी तो कोई है, सब कुछ हो जाएगा, टेंशन नहीं है उसमें। आपको मरीज की सबसे पहले जान बन जाता, और कुछ नहीं हो रहा है उससे। ये एक बार इंस्पेक्टर पॉइंट बोल दीजिएगा, क्योंकि कल मेरा मिस हो गया था कुछ पॉइंट। बेटा ये इसका फोटो ले लो, कल अपन ने पढ़ा है ना ये टेबल का, तो हम स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। कल अपन ने पढ़ा है ना ये पूरा टेबल, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले, आगे के लिए भी काम आ जाएगा। इस डब्बे का भी स्क्रीनशॉट लो सब लोग, ये जो कंपोनेंट ऑफ पीपीएच ट्रॉली है, ठीक है? इसका भी लो। नहीं दिखाई दे रहा है, स्क्रीन दिखाई दे रही है। अच्छा हाँ, मैं भूल गई बेटा, स्क्रीन शेयर मैंने बंद कर दिया। एक मिनट रुको, रुको अभी दिखेगा। ये लो, अब दिख रहा है? यस। ये डब्बे बहुत इम्पोर्टेंट। ले लिया? फिर बताऊंगी और किस किस का लेना। ये इसकी फोटो ली कल, इसकी भी लो, एस्टिमेशन ऑफ ब्लड लॉस की। जिसने नहीं लिया है वो ले लो फटाफट, ये काम की चीज है बेटा, इसलिए बार बार इस पे थोड़ा तुम्हें ज्यादा जोर डाल के बोल रही हूँ कि ये जरूरी है, ये जरूरी है। ठीक है, चलो ये वाला डब्बे की लो, क्लिनिकल असेसमेंट। कोई है जिसको लग रहा है कि ज्यादा पढ़ा दिया, इसकी तो हमें जरूरत नहीं होती है? कोई ऐसा जिसको ऐसा लग रहा है? नहीं मैडम, अच्छा है ना, आपने अच्छा ज्यादा पढ़ाया। सब बढ़िया। चलो ये शॉक इंडेक्स का लो, शॉक इंडेक्स काम की चीज है। इसीलिए कभी भी अगर आपको लगे ना पेशेंट की हालत थोड़ी सीरियस है, तो उसका आपने पल्स लिया, आपने बीपी लिया, फटाफट आप उसकी शॉक इंडेक्स निकाल दो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पेशेंट शॉक में तो नहीं जाएगा। हो सकता है वो इनिशियल स्टेज ऑफ शॉक में हो, ठीक है? अगर शॉक इंडेक्स निकालोगे ना तो कभी फंसोगे नहीं, कि एकदम पेशेंट मरी हालत में होने से पहले ही आप उसको बचा पाओगे। ठीक है, चलो ये वाला भी एक फोटो लेना पड़ेगा तुम्हें, जो मैंने हेल्पर 1 हेल्पर 2 पढ़ा है ना कल। इसको इंग्लिश में है बेटा, तुम लोग थोड़ा धीरे धीरे पढ़ के अपनी भाषा में इसको कन्वर्ट करके नोट्स बना लेना, ताकि तुम लोग को एंड में पढ़ने में आसानी रहे। और नोट्स अभी से बनाओ, एंड मोमेंट पे बनाओगे तो फिर रोते परेशान होते रहोगे, इतना पढ़ा दिया, अब मेरे पास इतना सारा पढ़ने को, ये नहीं करना है, ठीक है? कंप्लीट है मेरे नोट्स। जरूरी है। हाँ, नहीं जिनसे नहीं बनाना है, जिसने सोचा कि बाद में नोट्स बनाएंगे, तो वैसा मत करो। हाँ, गोली दवा सहित 200 हुआ होगा। चाहिए और कभी
क्लास कोई एक आध दिन कभी नहीं अटेंड कर पाओ तबे ठीक है, कोई काम आ गया, मेहमान आ गए, तो एक दूसरे की मदद कर दिया करो, शेयर कर लिया करो एक दूसरे के साथ। सुबह शाम अब अगर रोज ही कोई एक इंसान नहीं है बिल्कुल अटेंड नहीं कर रहा है तो उसके लिए कुछ नहीं कर शाम को एक सकते, बार, लेकिन बाकी सब एक शाम दूसरे दो की बार, हेल्प कर दिया करो। सुबह दोपहर शाम 3 बार, ठीक है। 2 वाले 3 बार, 4 वाले 2 बार, 2 वाले यस मैम। खाने के बाद। हाँ और शीशी लेना क्या? मेन दवा तो वही है। ग्रुप जो चला रहे हैं ना वशिष्ठ जी, हाँ कल आप भी मैसेज कर पाते हैं, अगर कोई छात्र कर ही नहीं पाते हैं, कोई जानकारी पता नहीं, मेरे को नहीं पता है कौन सा ग्रुप है कौन सा नहीं। मैं एक कोई तो ग्रुप है उस पे मैंने मैसेज किया है और एक मैंने वशिष्ठ जी को मैसेज किया, उसके अलावा क्या ग्रुप है क्या ग्रुप नहीं है बेटा मुझे पता नहीं है। मैंने चालू किए शीशी थे, तो तो अगर 80 कोई रुपए की रिकॉर्डिंग कर लिया तो ग्रुप में भेज देते तो सहूलियत हो जाती थी सभी को। इसके सही। रिकॉर्डिंग का देखो ये सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड तो हो रहे हैं, तो अच्छा। आप जहाँ से आपने ये पूरा कोर्स में एनरोल किया है आप उनसे बात करिए क्योंकि सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड तो हो रहे हैं। शीशी हो गई शायद, भाव बढ़ गया होगा। ये तो फिक्स है क्योंकि यहाँ पे मैं जब भी लॉगिन करती हूँ तो मेरे पास आता है कि लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, समझ रहे हो? तो आप उनसे रिकॉर्डिंग मांग लीजिए कि कभी कुछ मिस हो जाता है तो। मैम सबके मोबाइल पे ऑप्शन रहती है रिकॉर्डिंग्स के, और ग्रुप्स तो ये जो है तो लॉक करके रखा गया है कि उसमें बहुत सारे गदर होते थे मैम, ठीक है उसमें मैसेज भी तो वो सब आप लोग देख लीजिए, लेकिन मैसेज तो मैं हमेशा भिजवा ही देती हूँ क्लास के लिए, ऐसा नहीं है बिना मैसेज के मैं क्लास टाइमिंग ना चेंज करती हूँ। और आज भी 1 घंटे पहले बता दिया था कि क्लास जो है वो 5 बजे होगी। यस मैम। सैटरडे है, वैसे भी 6 से 7 आप लोग की क्लास अटेंड करो और 7 बजे से आप भी फ्री हो, आप लोग की फैमिलीज है, किसी को बच्चों को घुमाना है, खुद घूमने जाना है, जो करना है कर लो, है कि नहीं? यस मैम। जी मैम। चलो ठीक है, फिर मंडे को मिलते हैं, है ना? थैंक यू मैम। ओके थैंक यू मैम। मोल्डर